हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मैं आपका अपना अमृत राजलवाल हाजिर हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल आई एम राजलवाल में। दोस्तों, हमारे इस चैनल के माध्यम से हम आपके लिए एग्रीकल्चर एजुकेशन से जुड़े हुए वीडियोज़ के साथ साथ जब भी हमें कहीं बाहर जाने का मौका मिलता है तो हमारे देश की कल्चर, हमारे देश की हिस्ट्री, हमारे देश के हिस्टोरिकल प्लेसेस, इनसे जुड़े हुए, इनक्रेडिबल इंडिया से जुड़े हुए वीडियोज़ आपके लिए लेके आते हैं। दोस्तों, सॉयल बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ प्लांट ग्रोथ के लिए एक फंडामेंटल बेस होती है। सॉयल में पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द्वारा रिलीज एंजाइम्स प्लांट के लिए अवेलेबल जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी बायो अवेलेबिलिटी में एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा सॉइल में पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द्वारा रिलीज लो मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक एसिड्स और एंजाइम्स जो है वो सॉइल की स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करते हैं, साथ ही साथ सॉइल के पार्टिकल्स को बाइंड करके सॉइल इरोजन को भी कम करते हैं। तो दोस्तों, सॉइल में पाए जाने वाले इन माइक्रोब्स और इनके द्वारा रिलीज होने वाले एंजाइम्स को आप किस प्रकार से एनालिसिस करेंगे, इसके ऊपर हमने एनालिसिस ऑफ सॉइल बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज सीरीज शुरू की है। इस सीरीज के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि सॉइल में पाए जाने वाले माइक्रोब्स और इनके द्वारा रिलीज होने वाले एंजाइम्स को आप किस प्रकार से एनालिसिस करेंगे। आज इस सीरीज के सेकंड वीडियो में हम बात करेंगे एनालिसिस ऑफ फॉस्फेटेजेज एंजाइम। तो दोस्तों, चलते हैं लैब की तरफ। लैब में जाने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस की आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ फॉस्फेटेज एंजाइम एक्टिविटी इन सॉइल. So, the general name of phosphatase is used to describe a broad group of enzymes which catalyze the hydrolysis of both esters and anhydrides of phosphoric acid in soil. So, means कहने का मतलब ये है कि the name phosphatase has a different group of enzymes in the soil and these enzymes are phosphoric monoester hydrolases, that is called as phosphomonoesterases. The second group is phosphoric diester hydrolases, which is known as the phosphodiesterases, and the third group contains the triphosphoric monoester hydrolases, and the fourth group in this enzyme is enzymes acting on the phosphoryl containing anhydrides, and the fifth one is the enzymes acting on the phosphorus and nitrogen bonds like phosphoamidase. So these are the group of enzymes which are named as a phosphatases group. And among all the enzymes, due to relative importance of phosphomonoesterases in the soil organic pre-mineralization and plant nutrition, their assay in soil assumes more important among all the enzymes. Means among all these 5 enzymes, the first group which contains phosphoric monoester hydrolases, यानी कि phosphomonoesterases, its relative importance in pre-mineralization and plant nutrition is higher as compared to the other nutrients, other enzymes. So we will today discuss about the principle of phosphomonoesterases. So phosphoric monoester hydrolases यानी कि phosphomonoesterase enzyme basically contain 2 groups of enzyme. These are acid phosphatase enzyme and alkaline phosphatase enzyme. And these enzymes are known as acid and alkaline phosphatases because of their work in their respective pH levels. Now, this acid phosphatase enzyme is contributed by both plant roots and the soil inhabiting microbes, while the alkaline phosphatase enzyme is solely contributed by the soil microbes present into the soil. Among the various methods developed for the analysis of phosphatase enzyme, the method developed by the Tabatabai and Bremner in 1969 is most accurate method, rapid and the precise method. So this Tabatabai and Bremner method involves the colorimetric estimation of p-nitrophenol released by the phosphomonoesterase activity when the soil is incubated with buffer. We prepared the buffer at pH 6.5 for acid phosphatase enzyme and pH 11 for alkaline phosphatase enzyme. And other than that is sodium p-nitrophenyl phosphate, which is used as the substrate, and third one is the toluene. Toluene solution is also added.
alkaline phenol has yellow color and this yellow color is measured colorimetrically. Also, the calcium chloride and NaOH treatment after the incubation is added to stop the phosphomonoesterase activity and to develop the yellow color and to provide the quantitative recovery of the p-nitrophenol from the soil. So दोस्तों, ये था phosphatase एंजाइम एक्टिविटी का प्रिंसिपल। अब हम बात करेंगे किन किन रिएजेंट्स की आपको इसके लिए जरूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स, रिएजेंट्स की अगर हम बात करें तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिएजेंट होता है वो होता है मॉडिफाइड यूनिवर्सल बफर स्टॉक सॉल्यूशन। यानी कि इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए? आपको चाहिए होता है 12.1 ग्राम ऑफ ट्रिस हाइड्रोक्सी मेथिल अमीनो मेथेन, यानी इसे हम THAM भी कहते हैं, ये चाहिए होता है। 11.6 ग्राम्स ऑफ मैलिक एसिड चाहिए होता है। 14 ग्राम्स ऑफ सिट्रिक एसिड चाहिए होता है और 6.3 ग्राम्स ऑफ बॉरिक एसिड चाहिए होता है। इन चारों रिएजेंट्स को आप ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर ऑल द 4 रिएजेंट्स इन 488 ml ऑफ 1 नॉर्मल NaOH। दिस इज 1 normal NaOH solution and make up the volume 1000 ml with distilled water. Means first of all, weigh all these 4 reagents and then transfer all these 4 reagents into 488 ml of 1 normal NaOH and then make up the volume to 1000 ml with the help of distilled water. Then from this modified universal buffer stock solution, you have to prepare 2 modified universal buffer solutions, which one will be 6.5 pH and another will be 11 pH. So ये जो 6.5 pH है ये हम यूज करेंगे एसिड फॉस्फेटेज के लिए और 11 जो pH है वो हम यूज करेंगे एल्कलाइन फॉस्फेटेज के लिए। इसके लिए आप क्या करेंगे? ट्रांसफर 200 ml of MUB stock solution in 500 ml beaker and adjust pH 6.5 for acid phosphatase with 0.1 normal HCl hydrochloric acid and 11 pH with the help of 0.1 normal NaOH for alkaline phosphatase enzyme। यानी पहले आपने ये बना लिया स्टॉक सॉल्यूशन और फिर इस स्टॉक सॉल्यूशन से आपने 6.5 pH और 11 pH के 2 अलग अलग सॉल्यूशंस बना लिए टू मेजर दी एसिड फॉस्फेटेजेस एंड अल्कलाइन फॉस्फेटेजेस। तो MUB के अलावा हमें जिन जिन रिएजेंट्स की जरूरत पड़ती है उनमें पहला है 0.5 मोलर कैल्शियम क्लोराइड। इसके लिए आप क्या करेंगे? 73.5 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड डाइहाइड्रेट सॉल्यूशन 1000 ml डिस्टिल्ड वाटर में डिसॉल्व कर लेंगे। इसके अलावा चाहिए होता है हमें 0.5 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। इसके लिए आप 20 ग्राम्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो 1000 ml डिस्टिल्ड वाटर के अंदर डिसॉल्व कर लेंगे। अब बात आती है हमारे सबस्ट्रेट की। ये हम यूज करते हैं एज ए सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट क्या है? 0.025 मोलर p-नाइट्रोफेनिल फॉस्फेट सॉल्यूशन होता है, ये हमारा सबस्ट्रेट होता है। इसके लिए आप क्या करेंगे? डिसॉल्व 0.42 ग्राम्स ऑफ p-नाइट्रोफेनिल फॉस्फेट टेट्राहाइड्रेट सॉल्यूशन। ये ध्यान रखिएगा, ये हेक्साहाइड्रेट और टेट्राहाइड्रेट दोनों में आता है। यदि आप टेट्राहाइड्रेट यूज कर रहे हैं तो 0.42 ग्राम्स लेंगे और यदि आप जो है हेक्साहाइड्रेट यूज कर रहे हैं तो 0.464 ग्राम इसका आप यूज करेंगे। तो डिसॉल्व 0.42 ग्राम्स ऑफ p-नाइट्रोफेनिल फॉस्फेट टेट्राहाइड्रेट सॉल्यूशन इन 40 ml ऑफ MUB। जो मॉडिफाइड यूनिवर्सल बफर सॉल्यूशन आपने आइदर 6.5 pH फॉर एसिड फॉस्फेटेजेस और 11 pH फॉर अल्कलाइन फॉस्फेटेज आपने तैयार किया, उसमें इसको डिसॉल्व कर लेंगे एंड मेकअप द वॉल्यूम टू 50 ml विद द हेल्प ऑफ सेम MUB। एंड लास्ट में आपको चाहिए होता है 1000 ppm का स्टैंडर्ड p-नाइट्रोफेनॉल सॉल्यूशन। इसके लिए डिसॉल्व 1 ग्राम ऑफ p-नाइट्रोफेनॉल इन 1000 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। तो ये थे दोस्तों इसके रिएजेंट्स। अब हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर की। तो प्रोसीजर की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो प्रोसीजर में सबसे पहले आप क्या करेंगे? 1 ग्राम ऑफ सॉइल लेंगे which should be oven weight dry equivalent 1 gram in 50 ml conical flask in duplicate, means each samples you have to take in duplicate. After that add 0.2 ml of toluene and 4 ml of your modified universal buffer. If you are measuring acid phosphatase enzyme, then add the MUB of 6.5 pH. If you are measuring the alkaline phosphatase enzyme, then add the MUB of 11 pH. So respective pH MUB you have to add which whatever the enzymes you are
measuring. After adding the 0.2 ml of toluene and 4 ml of MUB, add 1 ml of your p-nitrophenyl phosphate, यानी कि जो सबस्ट्रेट हमने तैयार किया था, in one set of samples. Means between the two sets which we have taken for measuring the phosphatase enzyme, we have to add the substrate in one set of the sample, and after that swirl the flask and incubate at 37 degrees Celsius for 1 hour. Incubation period is 1 hour and incubation temperature is 37 degrees Celsius. After the incubation, add 1 ml of 0.5 molar calcium chloride and 4 ml of 0.5 sodium hydroxide solution. After finishing the incubation, we have to add the 1 ml of 0.5 molar calcium chloride and 4 ml of 0.5 molar NaOH. And then again swirl the flask, and after shaking the flask, add 1 ml of p-nitrophenyl phosphate substrate to the remaining sets of sample. In one set we added before incubation, and in one set we have to add after the incubation. And after adding the substrate, filter the solution with Whatman number 2 filter paper, and then measure the yellow color intensity at 440 nanometer in the spectrophotometer. तो दोस्तों ये था इसका प्रोसीजर, जिसमें सबसे पहले weigh the soil, 1 ग्राम soil 2 sets में लेंगे, देन उसके अंदर आप 0.2 ml toluene ऐड करेंगे, 4 ml of your respective MUB ऐड करेंगे, ACP और आपके ALP यानी कि एसिड फॉस्फेटेज और अल्कलाइन फॉस्फेटेज के लिए। उसके बाद में एक सेट, दोनों सेट्स में से एक सेट के अंदर हम हमारा p-नाइट्रोफेनिल फॉस्फेट सबस्ट्रेट ऐड करेंगे। उसके बाद में सैंपल को हल्का सा सेक करेंगे, एंड देन उसको 1 आवर के लिए 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इंक्यूबेट करेंगे। इंक्यूबेशन के तुरंत बाद इसमें 1 ml 0.5 मोलर कैल्शियम क्लोराइड ऐड करेंगे और 4 ml 0.5 मोलर NaOH ऐड करेंगे। उसके बाद अगेन थोड़ा सा सेक करेंगे सैंपल को, एंड देन जो रिमेनिंग सेट था हमारा, उसमें हमारा सबस्ट्रेट ऐड करेंगे, और सबस्ट्रेट ऐड करने के तुरंत बाद इसको हम वाटमैन नंबर 2 फिल्टर पेपर से फिल्टर करेंगे, और उसके बाद में जो येलो कलर इंटेंसिटी है वो हम 440 नैनोमीटर जो हमारी जो वेवलेंथ है उस वेवलेंथ के ऊपर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में इसका वो ले लेंगे। तो दोस्तों ये था इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। अब लास्ट में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से आप एसिड और एल्कलाइन फॉस्फेटेज का कैलकुलेशन करेंगे। दोस्तों कैलकुलेशन की यदि हम बात करें तो कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्टैंडर्ड प्रिपेयर करेंगे, और स्टैंडर्ड प्रिपरेशन के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमने 1000 ppm का स्टॉक सॉल्यूशन बनाया था, 1000 ppm स्टॉक सॉल्यूशन ऑफ p-नाइट्रोफिनॉल, जो p-नाइट्रोफिनॉल का हमने 1000 ppm का स्टॉक सॉल्यूशन बनाया था, इससे 10 ppm का हम वर्किंग सॉल्यूशन बनाएंगे, 10 ppm वर्किंग सॉल्यूशन। और उसके बाद में इस वर्किंग सॉल्यूशन से 0.0, 0.5, 1, 2, 3, 4 इस तरह से सो ऑन हम जो है पिपेट आउट करेंगे सॉल्यूशन। और उसके बाद में फिर इसमें वही प्रोसीजर जो हमने सॉइल के लिए फॉलो किया था, 0.2 ml टोलुइन डालेंगे, उसके बाद में फिर हम इसमें 1 ml हमारा जो है 4 ml MUB डालेंगे, MUB के बाद फिर इसके अंदर हम जो है इसको p-नाइट्रोफेनिल फॉस्फेट सॉल्यूशन डालेंगे। इस तरह से इसका पूरा प्रोसीजर फॉलो करेंगे। उसके बाद में उसकी एब्जॉर्बेंस ले लेंगे, तो फिर उसके बाद में वही सेम जैसे हम करते हैं, यहाँ पे हमारी आ जाएगी क्वांटिटी जो भी आपने लेती 0.5, 1, 2, 3, 4 जो भी यहाँ पे आ जाएगा एब्जॉर्बेंस, इनके अंदर जो एब्जॉर्बेंस आएगा, इससे आप एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। इस ग्राफ पे जो भी इक्वेशन आएगी आपकी, इससे आप कंसंट्रेशन निकाल लेंगे। तो ये जो इक्वेशन आएगी आपकी, इस इक्वेशन से आप कंसंट्रेशन निकाल लेंगे। सपोज मान लो मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। सपोज हमारी जो इक्वेशन आती है, जो इस पे इक्वेशन आएगी, जो आएगी हमारी y बराबर 0.0552x प्लस जो है हमारा 0.0144। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है। मान लो सपोज 0.154 हमारा एब्जॉर्बेंस आया, माइनस 0.0144 डिवाइडेड बाई 0.0552, दिस विल बी योर x वैल्यू, यानी कि दिस विल बी द कंसंट्रेशन। और इस कंसंट्रेशन को हम कैसे मेजर करेंगे, माइक्रोग्राम p-नाइट्रोफिनॉल पर ग्राम सोयल
पर आवर में, क्योंकि वी आर इंक्यूबेटिंग दी सैंपल्स फॉर 1 आवर। तो ये दोस्तों इसकी कैलकुलेशन थी कि आप इस प्रकार से जो है आपके जो सैंपल्स है उनके अंदर आपने जो एब्जॉर्बेंस लिया उसको किस प्रकार से फॉस्फेटेज एंजाइम का कैलकुलेशन करें। दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने आपको बताया एनालिसिस ऑफ फॉस्फेटेज एंजाइम इन सॉइल सैंपल्स। इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताया फॉस्फेटेज एंजाइम एनालिसिस का क्या प्रिंसिपल होता है, किन किन रिएजेंट्स की आपको जरूरत पड़ती है, स्टेप बाय स्टेप आप क्या प्रोसीजर फॉलो करोगे और आप इसका किस प्रकार से कैलकुलेशन करोगे। आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जो उपयोगी होगा एग्रीकल्चरल स्टूडेंट्स के लिए, एग्रीकल्चरल रिसर्चर्स के लिए, फार्मर्स के लिए और एग्रीकल्चरल पॉलिसी मेकर्स के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।